Hello friends, welcome to our channel and today we are going to discuss about the note making strategy for UPSC and ये जो strategy आज हम आपको बताने वाले हैं वो मैक्सिमम 10 टॉपर्स के strategy से एनालिसिस करके हमने ये नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी बनाई है। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई नोट मेकिंग इज़ नेसेसरी। जब तक आप ये जान नहीं लेते तब तक आपको नोट क्यों बनानी चाहिए या कैसे बनानी चाहिए वो आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने नोट्स बना दिए हैं तो आपकी जो रिवीजन है वो बहुत अच्छे से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आपने जो नोट्स बना दिए तो उसको एक प्रॉपरली कंसोलिडेट कर सकते हैं एक वन प्लेस पे। ठीक है, नोट्स मोस्टली एक वन प्लेस पे आपने मैक्सिमम रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद एक वन प्लेस पे जब आप नोट्स कंसोलिडेट करते हैं तो उसका रिवीजन भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ मोस्टली एक नोट्स जो होते हैं वो एक अलाइंड होते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में जिसको आप रीड कर सकते हैं एक डे बिफोर द एग्ज़ाम। ओके, अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो हेल्प to build an answer writing more effectively. So things while we should understand while making the notes. So basically makes the note in a blank sheet of a A4 size. Most of the topper used to make the note in the A4 size sheet so that they can update it regularly, and nowadays some toppers are also making the notes in the digital format, so they are also can update regularly. So choice is your, according to your choice and according to your flexibility you can make the notes either in A4 size pages or a digital notes. And while making the notes, the most important point you must consider that you should keep the syllabus and the previous year question paper while making the notes, so that you can make the notes according to the points of the syllabus and according to the how question come in exam, and you can get the analysis from which topic the question come in the exam in which way, so you can make the note according to it. Okay, and most of the time try to make the notes common for prelims and mains. I will give the answer of this question in the further slides. And while making the notes, make sure that you must add more diagram and flowcharts and write the notes in a points, so that the notes while you are reading afterward it will catch the eyes, it is not more descriptive, so it will use to catch the eyes, and it also help you during the answer writing, because flowchart and diagram can catch you the more mark. Next, write the notes more precisely to the point and don't write it more elaborative, because and write it according to the need of the exam. As it is prelims or the means, you can write according to that notes, because prelims some static point or the descriptive part doesn't came. Okay, so make the notes precisely according to the prelims and the means, and try to make the integrated notes. Okay, what do you mean by integrated note? Integrated note means first read the static portion. Okay, फर्स्ट कंप्लीट द स्टैटिक पार्ट सच एज लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, या स्पेक्ट्रम हो गया हिस्ट्री के लिए। इस तरीके से जो भी स्टैटिक पार्ट की बुक्स है वो पहले पढ़ लिए, उसके बाद जो करंट में क्या इवेंट चल रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड, और उसको फिर वहाँ पे आप अच्छे से ऐड कर दें। मतलब जो नोट्स होने चाहिए वो एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में होने चाहिए, जो स्टैटिक रिसोर्सेज के नोट्स अलॉन्ग द current affair, because while writing the answer you have to mention the current related the means any question if there, and you can add some current affair points and some static points, so the answer can fetch you the more mark. Okay, and while making the note, first read all the static resources and then the current affair related to it, and then make the final notes. Don't make the note directly reading by the static or directly reading by the current. Okay, read the note, make the note after reading the static and the current affair. Okay, after the prelims, whatever the note, okay, before prelims you made some notes, and after the prelims take that notes, read it once again, and try to make the note again more precisely before the mains exam, because exam
आपका जो होता है मेंस का वो एक दिन का मोस्टली गैप होता है पेपर्स के बीच में। सो आपको पूरा नोट्स आपको GS1 पोर्शन है, GS2 हो या GS3 हो, आपको पूरा कवर करना पड़ता है एक दिन में। इसलिए आपके नोट्स जो होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स के पहले जो आपने नोट्स बनाए उसको फिर से एक बार आप प्रीलिम्स के बाद बनाए, और वो ज़्यादा प्रिसाइज हो, अप टू द पॉइंट होने चाहिए। उसके बाद जो भी सिलेबस होता है उसके हर एक टॉपिक में, जैसे GS1 के सिलेबस अगर लिए तो वहाँ पे हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आता है, और स्पेसिफिकली जो UPSC का सिलेबस है वहाँ पे सब पॉइंट्स मेंशन है। तो हर एक पॉइंट्स पे आपका नोट्स रेडी होने चाहिए बिफोर द मेंस। ओके, सो हर एक टॉपिक पे आप नोट्स बना दीजिए। इसके साथ साथ एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी जो नोट्स जो है आपको लॉन्ग टाइम आपको उसका रिवाइज करते रहना चाहिए, बिकॉज अगर काफ़ी टाइम बाद आपने क्या नोट्स बनाए थे पहले वो भूल जाते हैं, इसलिए उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में नोट्स नहीं बनाते हो तो आप ऐसा करो कि सेपरेट नोटबुक्स बना लो फॉर ऑल द GS टॉपिक। जो भी GS के टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री के लिए हो या ज्योग्राफी हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो GS के बुक्स हैं, GS टॉपिक्स हैं, या GS1 GS2 GS3 इस टाइप के आप नोट्स बना सकते हो, नोटबुक्स बना सकते हो। जो हर एक नोटबुक में आप पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड, पर्टिकुलर पार्ट रिलेटेड आप वहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ जो भी न्यू इंडेसेस आते हैं, जैसे हो गया गवर्नमेंट ने कुछ नया इंडेक्स लॉन्च किया, कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इंडेक्स, या कोई भी जो रिपोर्ट लॉन्च हुई उसका एक सेपरेट A4 साइज में हम लिख दिए तो आपको वो बार बार रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। उसके साथ साथ जो आप नोट्स बनाते हो, अगर आपने ज्योग्राफी के नोट्स बनाए तो वहाँ पे मोस्टली मैप्स इंक्लूड कर दी जाए, और जो भी मैप्स हैं ज्योग्राफी रिलेटेड या किसी भी नए इवेंट के रिलेटेड जो आपने प्रिसाइजली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए उसके भी सेपरेट पेजेस रख दीजिए, सो आपको वो अच्छे से याद हो गया। ओके, थैंक यू। Please do like, comment, subscribe, and thank you.